में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में कर ला दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हो जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। So we want to welcome Pastor Georgie on this beautiful evening, and this is our privilege to have him with us. He is the associate pastor at Grace Chapel, Bangalore, and we have been hearing his YouTube ministry, and we have been so much fascinated. हम पास्टर जोजी जो एसोसिएट पास्टर हैं ग्रेस चैपल बैंगलोर से, उनके हम लोग सीरीज़ को जो YouTube पे हैं उनको देखकर बहुत ही प्रभावित हैं। वो एक जवान प्रभु के दास हैं। ही इज़ अ यंग pastor and he is very energetic. We have been watching him on YouTube on the live Sunday services too. So we want to welcome Pastor, and this is your time. Thank you so much, brother. Thank you so much. All right, let's just pray. Let's start the meeting. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we praise you, we worship you. We thank you for this. We thank you for this time. You're so good to us. Your loving kindness and tender mercy, they're from everlasting to everlasting. We're grateful for this day. We're grateful for this opportunity. We thank you so much, Father. Thank you, thank you, thank you. You are so good to us, so good to us, so good to us. Our Father in heaven, our Heavenly Father, the Father from whom all fatherhood derives its name. We are grateful, Lord. Thank you for another opportunity to gather together in the name of your Son, Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you. You are in our midst right now. We acknowledge your presence right now. Thank you so much. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. All right. So let's go to Matthew chapter 24, verse 14. आइए मत्ती 24 और उसका 14 पद में हम लोग जाएंगे। And it says, this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सुसमाचार का प्रचार होगा और उसके बाद उसका आना होगा। So who is speaking? कौन है यहाँ पर बातचीत कर रहा है? You see, it's our Lord Jesus speaking. यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं।
And you see, when you study the Gospels, देखें, आप जब सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं, we see Jesus preaching about the kingdom throughout the four Gospels. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन 4 सुसमाचारों के अंदर परमेश्वर के राज्य के विषय में बातचीत करते हैं। He started his ministry by preaching about the kingdom. उसने अपनी सेवकाई का आरंभ परमेश्वर के राज्य को बताने से किया। All the miracles and healings that we see associated with Jesus is because he preached the kingdom of heaven. और सारे जो चमत्कार और परमेश्वर की ओर से किए हुए बड़े बड़े काम जो हैं, वो परमेश्वर के राज्य के विषय में बताने से हुए। Let's go to Matthew chapter 4 verse 17. आइए मत्ती 4 और उसका 17 पद में जाएंगे। We will see it today. आइए हम इस वचन को इसके ऊपर अध्ययन करेंगे आज। I said we will see a lot of scriptures. और हम बहुत सारे वचनों को हम आज देखेंगे। And if you have a pen and pencil, I would encourage you to write down these scriptures. अगर आपके पास में पेन और पेंसिल है तो मैं चाहता हूं कि आप इन रेफरेंसेस को जरूर लिख लें। All right. Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। See, Jesus started his ministry by speaking about the kingdom. देखिए, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ उसके राज्य के विषय में बताने से किया। Let's look at verse 23 in Matthew 4. आइए मत्ती 4:23 को देखें। And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं से दूर करता। Look at this. It says he went about all Galilee. देखिए इसको, वो पूरे गलील प्रांत में गया। And what was he doing in all Galilee? और वो पूरे गलील में क्या कर रहा था? He was teaching the synagogue and preaching what? और वो आराधनालय में उपदेश देता और क्या बोलता? Said he was preaching the gospel of the kingdom. और वो राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता। And then we see something interesting happening here. और फिर हम एक सबसे रोमांचक बात होते हुए देखते हैं। And after he preached the kingdom, you see all kinds of healings happening. जब उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना खत्म किया तो उसके उपरांत चिन्ह और चमत्कार होने लगे। You see the verse says, and healing all kinds of sickness, all kinds of disease among the people. उस वचन कहता है कि हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। And then when you go to Matthew chapter 9, और जब आप मत्ती 9 अध्याय में जाते हैं, verse 35, 9 और 31 पद, you see almost similar scripture. आप यहां पर उसी प्रकार का वचन फिर से दोहराते हुए पाते हैं। Now you see Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. और देखिए यहां पर भी वो पूरे राज्य में चलता फिरता रहा और बीमारों को, दुष्टात्मा से भरे लोगों को चंगा करता। What was he doing? वो क्या कर रहा था? The same thing. यही, You see those two scriptures are almost similar. देखिए वो यही कर रहा Matthew था। 4:23 and Matthew 9:35. मत्ती 4:23 और मत्ती 9:31। See, the only difference is his ministry expanded now. अब केवल एक ही इसमें अंतर दिखाई पड़ता है कि अब जब उसकी सेवा बढ़ चुकी है। He started with Galilee, उसने गलील से प्रारंभ किया and now he went about all the cities and villages. और अब वो पूरे गांव, आसपास के गांव के सारे शहरों में चला गया। But he was doing the same thing. लेकिन वो उसी काम को जो पहले करता था करते आ रहा है। He was
teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom. और वो आराधनालयों में सिखा रहा था और परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। And you see all kinds of healings and miracles follow. और वहां पर आप हर प्रकार के चिन्ह और चमत्कारों को होते हुए देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you see this same pattern throughout the four gospels. और यही तरीका सारे 4 सुसमाचारों में हम पाते हैं। Hallelujah. You see Luke chapter 4, आप देखिए verse 43. लूका 4:43। And he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. और वो कहता है, उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus knew his purpose. यीशु अपने आने के उद्देश्य को जानते हैं। He said, I must preach the kingdom of God. मुझे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना होगा। Hallelujah. आमीन। Go to Luke chapter 9. आइए लूका 9 अध्याय में पहुंचे आप। Let's read verse 1 and 2. लूका 9 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। Hallelujah. हालेलुया। So now his disciples are involved. अब उसके शिष्य भी इसमें मिल चुके हैं। And what did he do to the disciples? अब उन्होंने शिष्यों के साथ में क्या किया था? He gave them power and authority. उसने उनको सामर्थ और अधिकार दिया। Gave them the authority उनको अधिकार दिया over all demons and to cure diseases. सारे दुष्टात्माओं के ऊपर और सारी बीमारियों से चंगा करने के ऊपर। But what did they preach? लेकिन उन्होंने किसका संदेश दिया, क्या प्रचार किया? He sent them to preach the kingdom of God. उसने उन्हें राज्य के प्रचार को करने के लिए भेजा। And then the healing followed. और फिर चंगाइयां होने लगी। Do you see a pattern here? क्या आप एक तरीका आप देख सकते हैं? First preach the kingdom and then healing follows. पहले उसके राज्य का प्रचार करें और फिर उसके बाद में चमत्कार होंगे। Let's look at verse 11, same chapter. उसी अध्याय के 11 पद को देखें, 9:11 को। When the multitudes knew it, they followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who need of healing. ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगा होने चाहते थे उन्हें चंगा किया। So this is the pattern that Jesus followed. ये एक तरीका है जिसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अनुसरण किया। His whole message was about the kingdom of God. उसका पूर्ण संदेश जो है परमेश्वर के राज्य के ऊपर ही था। And what is associated with the kingdom of God? और उस परमेश्वर के राज्य से क्या ताल्लुक रखता है? Healing and miracles. चंगाई और चमत्कार। Hallelujah. हालेलुया। He was saying, repent for the kingdom is coming. वो कहता, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आता है। And what is this kingdom about? और ये राज्य किस विषय के लिए है? क्या है ये राज्य? Let's go to Ephesians chapter 5 verse 5. आइए इफिसियों के 5वें अध्याय में हम लोग जाएंगे और उसका For 5वां this you पद। know that no whoremonger, no unclean person, nor covetous person who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
इफिसियों 5:5 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So forget not forget it, but let's look at the last part of the verse. आइए इस वचन के आखिरी भाग के ऊपर थोड़ा ध्यान करें। Whose kingdom is this? किसका राज्य है ये? It says the kingdom of Christ and of God. वो मसीह और परमेश्वर का राज्य है। Hallelujah. हालेलुया। So this kingdom that he was preaching about is the kingdom of Christ and of God. और ये जो राज्य जिसका प्रचार वो करता था, वो राज्य मसीह का और परमेश्वर का राज्य है। Jesus Christ is the king of this kingdom. यीशु मसीह इस राज्य का राजा है। 2 Peter chapter 1 verse 11. दूसरा पत्रस 1:11। For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. फर्स्ट पीटर 2 Peter chapter 1 verse 11. दूसरा पत्रस 1:11, वरन इसी रीति से तुम्हारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। Hallelujah. आमीन। So whose kingdom is this? ये किसका राज्य है? The everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. वो हमारे यीशु मसीह के अनंत राज्य का राज्य है। This is an everlasting kingdom. ये अनंत काल का राज्य है। This kingdom will not end. इस राज्य का अंत ना होगा। Hallelujah. हालेलुया। I want you to write down the scriptures. This is very important. मैं चाहता हूं कि आप इन बाइबल के वचनों को लिख लें, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख हैं, जरूरी हैं। See, I am a teacher of the word of God. मैं परमेश्वर के वचन का शिक्षक हूं। And every teaching I do will contain scriptures. I didn't get you. I broke that sound. और I'm a teacher of the word, and whenever I teach, I use a lot of scriptures. और मैं परमेश्वर के वचन का प्रचारक हूं, शिक्षक हूं, और मैं हमेशा बहुत सारे वचनों का प्रयोग करता हूं। Because I believe that scripture will explain scripture. क्योंकि वचन ही है जो दूसरे वचन को हमारे बीच में अर्थ के रूप में समझाता है। Hallelujah. This is the wisdom of God. ये परमेश्वर का ज्ञान है या बुद्धि है। So we see Christ is the king of this kingdom. देखें, मसीह है जो इस राज्य का राजा है। And this was prophesied about him. और ये तो उसके विषय में पहले से भविष्यवाणी के रूप में किया गया था। Let's go to Isaiah chapter 9. आइए मेरे साथ में यशायाह की किताब यशायाह नबी उसका 9 में जाएंगे। We read this for Christmas. हम इसे अक्सर यीशु के जन्म के समय पढ़ते हैं। But let's see something else here. आइए इसके विषय में कुछ और बातों को देखें। It says in verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. His name is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. और यहाँ पर यशायाह 9 और उसका 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. You see, it is written, the government will be upon his shoulder. देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रभुता उसके कांधे पे होगी। Hallelujah. हालेलुया। What government? कौन सी प्रभुता? Hello? हेलो। Sorry, I thought we got disconnected. यस। So what government is this talking about? कौन सी प्रभुता के विषय में यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है? The government of the kingdom of heaven.
परमेश्वर के राज्य का प्रभुता। Let's read verse 7. आइए 7वां वचन को देखें। Of the increase of his government and peace there will be no end, and upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह हम उसको दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। About the kingdom. ये उसके राज्य के विषय में है। And this was prophesied about Jesus. और ये यीशु के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में किया गया था। Now let's go to the book of Revelation. आइए प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएं। And let's read chapter 19 verse 11 onwards. 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 पद से हम आगे पढ़ेंगे। The apostle John is having a vision. यहाँ पर यूहन्ना जो प्रेरित है उसको एक दर्शन मिला है। Let's read. आइए पढ़ेंगे इसको। Verse 11, Now I saw heaven open, and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. His eyes were like the flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. प्रकाशित वाक्य 19-11 पद से मैं आगे पढ़ रहा हूं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Do you hear? What was the name? What was his name called? क्या हमने पढ़ा? उसका नाम क्या था? The Word of God. उसका नाम परमेश्वर का वचन है। And who is the Word of God? कौन है परमेश्वर का वचन? Jesus of Nazareth. यीशु जो नासरी है। He said in John, keep your finger here. Go to John 1, John chapter 1. इस जगह को बंद ना करें प्रकाशित वाक्य, लेकिन आप यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में पहुंच जाएं। Verse 1 says, In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through him, and without him nothing was made that was made. यूहन्ना 1:1 में इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। Hallelujah. Verse 14 says, And the Word became flesh and dwelt among us. और 14वां पद कहता है, वह वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। We know who this is talking about. हम जानते हैं ये किसके विषय में बात कर रहा है। Jesus. यीशु। Jesus is the Word of God. यीशु ही परमेश्वर का वचन है। And when you come back to Revelation, आप प्रकाशित वाक्य में जब वापिस आते हैं, we know now who is it talking about. हम जानते हैं वो किसके विषय में बातचीत कर रहा है। Talking about the Word of God, that is Jesus. और वो परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु के विषय में बातचीत करता है। Now let's continue with this idea. Let's continue reading from verse 14. इस विचार और इस समझ को रखते हुए हम आगे को पढ़ेंगे। Verse 14 of Revelation 19 says, And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on a white horse. Now out of his mouth goes a sharp sword, and with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron, and he himself treads the winepress of the fierceness of wrath of Almighty God.
and he has on his robe and his thigh a name written, the King of Kings and Lord of Lords. 14वें पद से मैं आगे पढ़ रहा हूं। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदा जाएगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, Hallelujah. He हालेलुया। is the King of Kings and Lord of Lords. और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। You need to know this for yourself. आपको अपने लिए इस बात को जानना है। You need to see it in the Word. आपको वचन में इसको देख लेना है। Because many people just know this because they sing some songs. They sing King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah, but it is not a revelation for them. और बहुत सारे लोग इसको गीतों में ही मात्र जानकर ऐसा गाते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ग्लोरी, हालेलुया। यानी उनके लिए ये एक प्रकाशन नहीं है, मात्र गीत के अंदर बोल हैं। But it has to be a revelation for you. लेकिन ये हमारे लिए एक प्रकाशन के रूप में होना है। He is the King of Kings and Lord of Lords. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He is a king. वो राजा है। And he knew he was a king. और वो जानता भी था कि वो एक राजा है। That's why when Jesus was brought before Pontius Pilate, he said, my kingdom is not of this world. इसलिए जब पिलातुस के सामने उसको पेश किया गया तो उसने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। Let's see that for ourselves. Let's go to John chapter 18. आइए इसको अपने आप के लिए हम देख लेते हैं। यूहन्ना 18 अध्याय में पहुंच जाएं। Verse 36. उसका 36वां पद। It says, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। So he knew he had a kingdom. वो जानता था उसका एक साम्राज्य, एक राज्य है। And when you read the next verse, it says, Pilate asked him, are you a king then? And Jesus said, you rightly said, I am a king. और अगला वचन हम इस प्रकार से देखते हैं, जब यीशु ने उत्तर दिया तो पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरा ही जाति और प्रधान याजकों में ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा। 37 brother. John 18:37. या 37 पद में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उस उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। Hallelujah. हालेलुया। He was a king. वो जानता था कि वो एक राजा है। And when you read the rest of that scripture, it says, for this cause I was born, for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. और इसलिए वो आगे कहता भी है कि मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए मैं संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरे शब्द सुनता है। Hallelujah. Jesus came to testify that he was a king with a kingdom. और यीशु मसीह इस संसार में आए गवाही देते हुए कि वो एक राजा है और उसका एक राज्य है। And he said to Pilate that I came to earth because I am a king and I will prove it by putting it to test. और पिलातुस को वो इस प्रकार से दावे के साथ में कहता है, मैं राजा हूं और मैं राज्य को दिखाने के लिए आया हूं। He said, I testify to the truth that I am a king. The king is here and the kingdom is here. And the kingdom is available to anyone who wants to come in. और वो सत्यता के साथ में इस गवाही को देता है कि मैं राजा हूं और मेरे पास में एक राज्य है और जो कोई विश्वास करे उसके राज्य में होगा।
Hallelujah. हालेलुया। So Jesus preached, he was preaching. If you look at the Gospels, he said, the kingdom of God is at hand, it is coming. और जब आप सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो वो यीशु कहते हैं परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, वो आ रहा है। But with his work on the cross, the kingdom is here. और क्रूस पे उसके काम से परमेश्वर का राज्य यहां पर है। So today when we preach that the kingdom of God has come. और जब आज हम प्रचार करते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसका राज्य आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। If you look in Colossians chapter 1 verse 13, अगर आप कुलुसियों 1:13 में देखें, it says, he has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of his love. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। Hallelujah. It says, you're already in the kingdom of God. वचन कहता है अब तुम राज्य में आ चुके हो। It does not say he's going to transfer you to the kingdom. It says you are already transferred to the kingdom of वो ये नहीं Jesus. कहता है कि तुम किए जाओगे उसके राज्य में या उसके राज्य में प्रवेश किए जाओगे, परंतु कहता है तुम्हारा प्रवेश करवा दिया गया है। Hallelujah. That's a past perfect tense. और ये भूतकाल का घटित हुआ एक संज्ञा है। Not it's already happened. वर्तमान Bhavishya, okay, it's Bhutkal. It's happened already. Yes. Sorry. I'm also refreshing my Hindi at the same time. Praise Praise the Lord. God. All right. And now, because you are already in the kingdom, you are citizens of this kingdom. और अब जब आप उसके राज्य में आ चुके हैं तो आप उसके राज्य के रहने वाले लोग हो गए हैं। Hallelujah. Let's look at Ephesians chapter 2, verse 19. इफिसियों 2:19 को देख लें आप। It says, now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगे स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के होगे। Hallelujah. Swadeshi ho. You're a citizen. अब आप परमेश्वर के राज्य के स्वदेशी हो। Let's see Philippians chapter 3, verse 20. फिलिपियों 3:20 को देखें। It says, for our citizenship is in heaven. और वो कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। Hallelujah. Hallelujah. So we are citizens of the kingdom of heaven. और हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के स्वदेशी हैं। He is our king वो हमारा राजा है and we are his citizens. और हम उसके स्वदेशी हैं। But there is something special about the citizens of this kingdom. लेकिन इस राज्य के जो स्वदेशी हैं उनके लिए कुछ गुणवातक बातें हैं। Who are the children? कौन है ये I'm बच्चे? sorry, citizens. कौन है ये स्वदेशी? They are the children of God. ये परमेश्वर के बच्चे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And what children get? और बच्चों को क्या मिलता है? They get an inheritance. उनको मिरास में उनका पितृत्व मिलता है। Hallelujah. Let's see Romans chapter 8, आइए रोमियो 8 अध्याय में जाएं। verse 16 and 17. रोमियो 8 16 और 17 पद। It says, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. And if children, heirs, and joint heirs with Christ. Heirs of God, joint heirs with Christ. Hallelujah. आमीन। 8 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो विरासत भी, वरन परमेश्वर की विरास और मसीह के संगी विरास हैं, कि जब हम उसके सुख दुख उठाए तो उसके संग महिमा भी पाएं। Hallelujah. It says you are joint heirs with Christ. और वो कहता है कि हम परमेश्वर के संगे संतान हैं। Hallelujah. Hallelujah. So that means if you are in the kingdom, इसका अर्थ यह है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में होंगे,
and Jesus is your king, और यीशु आपका राजा है, you are a child of God, आप परमेश्वर के बेटे हैं, you are joint heirs with the king. और आप अब परमेश्वर के साथ उसी के मीरास के हो जाते हैं। That means whatever the king owns, you own. इसका अर्थ ये है कि जो राजा का है वो आपका है। Whatever the king of the kingdom owns, the citizen owns. जो कुछ राज्य का राजा रखता है, जो उसका है, उसके स्वदेशी बच्चों का भी है। Hallelujah. हालेलुया। That's the reality of this kingdom. ये इस राज्य की प्रमुखता है, बहुमूल्यता है। You will not see this in any other kingdom. ये इस प्रकार की रोमांचक बातें और किसी राज्य में आप ना पाएंगे। Whatever the king of the kingdom owns, the citizens also own. They are joint heirs with him. और जो कुछ राजा का राज्य में है उसके बच्चों का भी है, और वो उसके लेपालक पुत्र हैं। Hallelujah. If he is a king and if you are a joint heir, then what are you? अगर वो राजा है और आप उसके लेपालक पुत्र हैं, तो आप कौन हैं? Think about it. इसके बारे में आप सोचें। Think. सोचें। He is, वो राजा है and you are joint heirs with him. और आप उसके लेपालक पुत्र हो गए हैं। What are you? आप कौन हैं? Keep that in your mind. इसको Keep अपने that. मन में बनाए रखें। Now let's go to Exodus chapter 19. आइए निर्गमन 19वें अध्याय में चलें। Let's read verse 5 and 6. 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। This is the original plan of God. ये परमेश्वर का सही योजना है। Let's read that. Verse 5. Now therefore, if you will indeed obey my voice, keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. निर्गमन 19 उसके 5 पद से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें Hallelujah. तुझे इसराइलियों से कहनी है वो यही हैं। So this is the original plan of God. और ये मूल तौर पर परमेश्वर की योजना है। This is under the old covenant. ये पुरानी वाचा के अंदर है। Jesus did not even come and pay the price for sin. यीशु मसीह अब तक आए नहीं है कि वो पाप का जो मूल्य है उसको चुकाएं। They are still under their sin. वो अभी भी उनके पापों के नीचे दबे हैं। But he still said, you will be my kingdom. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. फिर भी परमेश्वर उनसे क्या कहता है? तुम याजकों का राज्य और पवित्र जाति मेरे लिए रहोगे। So now let's come to the New Testament. आइए अब हम नए नियम में आ जाएं। Under the new covenant. नई वाचा के नीचे। Now let's go to 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। Let's read verse 9 and 10. उसका 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। Now it says, now I want you to look at this very carefully. और मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। It says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you will proclaim the praises of him who called you out of darkness and into his marvelous light. You were once not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. 1 Peter 2:9, right? 2:9 and 10, yes. Yes. पर तुम एक चुना हुआ वंश
और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत जाति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। It says you are the people of God, वो कहता है आप परमेश्वर के लोग हो, the praja. प्रजा। Hallelujah. Hallelujah. And it says you are a chosen generation, a royal priesthood. वो कहता है कि तुम चुनी हुई प्रजा हो और राजपदधारियों का समाज हो। It says royal priesthood. वो कहता है राजपदधारी, याजकों का समाज। Now, but it actually means you are a king and a priest. इसका अर्थ ये है कि तुम राजा और याजक भी हो। Let's see that explained in detail in Revelation. इसको बहुत साफ तरीके से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किस प्रकार से बताया उसको देखें। Revelation chapter 1 प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय says, verse 4 onwards, John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you, peace from him who is and was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to whom be glory and dominion forever and ever. Amen. प्रकाशित वाक्य 1:4 से मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की ओर से जो आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा अपने पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे। आमीन। Hallelujah. I know it's not written in the Hindi translation, but it actually says he made us kings and priests to his God and Father. हाँ, हिंदी में शायद इसका साफ उल्लेख इस प्रकार से शब्दों में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसने अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, अपने पिता परमेश्वर के लिए उसने अपने लिए राजा और याजक बना रखा है। He made us kings. उसने हमें राजा बनाया है। And he also made us priests. और उसने हमें याजक भी बनाया है। So say this with me. तो मेरे साथ में इस बात को कहें, I am a king and a priest in the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य में एक राजा हूं और एक याजक भी हूं। Say, I am a king and a priest in the kingdom of God. मैं एक राजा और एक याजक हूं परमेश्वर के राज्य में। You need to have a revelation of this. आपको इस बात का प्रकाशन होना चाहिए। Many people pray like this, oh God, I am a worm, I am the sand under your sea, I am a worm. They pray like that. बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, मैं तो एक कीड़ा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। But when God looks at you, he sees a king. लेकिन जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो आपको एक राजा के रूप में देखता है। He sees you as a king and he is the king of kings. और वो आपको राजा के रूप में देखता है और वो राजाओं का राजा है। Hallelujah. हालेलुया। Look at chapter 5 verse 10. It says, and you have made them a kingdom, a royal race and priests to our God, and they shall reign as kings over the earth. प्रकाशित वाक्य 5:10 में इस प्रकार से लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, I know
they had some trouble when they were translating it in the Hindi, because some of these things need to be a revelation. It was too much for some people to think, oh, God made us kings. देखिए, हिंदी का जब तर्जमा होता था तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि इतनी बड़ी बात को कि उसने हमें राजा बनाया, इसका वो अनुवाद करें। लेकिन सच में एक प्रकाशन है ये। Hallelujah. So Hallelujah. some people, oh, this is talking about the future. Revelation talking about the future. But then let's read Romans 5:17. कुछ लोग इसको कहते हैं ये तो आने वाले प्रकाशन का जो आने वाला उसके विषय में। लेकिन मेरे साथ में रोमियो की पत्री को पढ़ें। Romans 5:17 says, for if because of one man's trespass death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, they shall reign as kings through one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. और यहाँ पर रोमियो 5:17 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु से उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है कि अनंत जीवन में राज्य करेंगे। You will reign as kings in this life. आप उसके अनुग्रह में राज्य करने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। God to rule as a king in this life. परमेश्वर चाहता है कि आप इस जीवन काल में एक राजा के रूप में राज्य करें। As a king you rule, एक राजा के रूप में आप राज्य करें, and as a priest you bring your offerings before God. और एक याजक के रूप में अपने बलिदानों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। What offerings? कौन से बलिदान? Offerings of praise. स्तुति रूपी बलिदान। And you pray for others. आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Intercession for others. एक दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। There are a lot more scriptures. If I will quote them, you can just write down the references. और बहुत सारे वचन हैं, और अगर मैं उनको बोलूं, उल्लेख करूं, तो आप उसको तुरंत लिख लें। Revelations 22:5. प्रकाशित वाक्य 22:5। 1 Peter 2:5. पहला पत्रस 2:5। Romans 1:9. रोमियो 1:9। Romans 15:16. रोमियो 15:16। Hebrews 12:28. इब्रानियों 12:28। Hebrews 13:15. इब्रानियों 13:15। Hebrews 10:10. इब्रानियों 10:10। Philippians chapter 4:16-18. फिलिपियों 4:16 से 18 पद। Hebrews chapter 10:11-14. इब्रानियों 10:11 से 14। Why am I giving you so many scriptures? क्यों मैं आपको इतने वचन परमेश्वर के वचन के दे रहा हूं? So you will know that I am not simply making this up. This is from the Bible. तब आप ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं केवल इसको किसी रूप में बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखित है। I want you to go and read these verses, meditate on them, and the moment you get a revelation of these things, I assure you, you will rule as a king in this life. और आप जाएं और इन वचनों को खोलकर दोबारा से मनन करें, और मेरा दावा है, मैं मानता हूं कि जब आपके ऊपर ये प्रकाशन हो जाएगा तो आप इस जीवन काल में एक राजा के रूप में राज्य करेंगे। And then being a king, you go and preach the kingdom of God. और आप जब राजा हो जाएंगे तो उसके राज्य का प्रचार करने पाएंगे। And when you preach the kingdom of God, signs and wonders and miracles will follow you. और जब आप उसके राज्य का प्रचार करेंगे तो चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयां हो जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। You are in the kingdom. आप उसके राज्य में हैं। You are citizens of the kingdom. आप उसके राज्य के अंदर हैं। Now let's see something else. Go to Luke chapter 17. और इसमें हम देखेंगे लूका 17 अध्याय में Verse 20 and 21 we will read. लूका 17
20 और 21 पद को पढ़ेंगे। Now, when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, "The kingdom of God does not come with observation, nor will they say, 'See here' or 'See there.' For indeed, the kingdom of God is within you." और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य के रूप में नहीं आता, और लोग ये कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। Okay, in Hindi it is written is in the midst of you, but actually it says the kingdom of God is within you, in you. और हिंदी में तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में उसका इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य तुम में है, तुम्हारे अंदर है। The original translation, Greek translation, also says it is in you, within you. और जो मूल भाषा यूनानी भाषा है, उसमें इसका अर्थ लिखा है तुम में है, तुम में उसका राज्य है। So what do you mean by this? इसका अर्थ क्या है? Brother, you said we are in the kingdom. Now you are saying kingdom is in us. What do you mean by that? और आप अब कहेंगे, भाई आपने कहा था परमेश्वर का राज्य में तुम हो, और अब आप कह रहे हो परमेश्वर के राज्य तुम में है। What do you mean by that? इसका मतलब क्या है भाई? How can you say I am in the kingdom and the kingdom is in me? आप कैसे कह सकते हैं मैं राज्य में हूं और राज्य मेरे अंदर है? Isn't that confusing? ये कुछ उलझाने वाली बात नहीं लगती? No. नहीं। Think about this. I'll give you an example. इसके बारे में सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। You take half a glass of water आप आधा ग्लास पानी ले लें and half a glass of milk. और आधा ग्लास दूध का ले लें। Now pour the milk in the water. आप पानी में दूध को डाल दें। Now my question, where is the water? मेरा सवाल है, दूध कहाँ है? No, where is the water? मेरा सवाल है, पानी कहाँ है? In the milk. दूध में है। Where is the milk? दूध कहाँ पर है? In the water. पानी में है। So how can you say milk is in the water and water is in the milk? तो आप कैसे कहेंगे कि पानी दूध में है या दूध पानी में है? The same logic. यही बात यहां पर भी आती है। You are in the kingdom and the kingdom is in you. आप परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर का राज्य तुम में है। That means wherever you go, you carry the kingdom of God. इसका अर्थ ये है, जहां कहीं आप जाते हैं उसके राज्य को अपने साथ में लेकर जाते हैं। Whichever place you set your foot to, the kingdom of God lands there. और जहां कहीं आप जाकर अपने पांव को धरते हैं, परमेश्वर का राज्य वहां पर आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। You're a carrier of the kingdom. That's why when you preach, the power of God flows. इसलिए परमेश्वर के राज्य को लेकर चलने वाले आप हैं। इसलिए जब आप प्रचार करते हैं तो सामर्थ आती है। In 1 Corinthians chapter 4 verse 20, पहला कुरिन्थियों 4:20 में it is written, "For the kingdom of God is not just in word, but in power." यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। It's in power. वो सामर्थ्य में है। It's a mighty display of power. और ये परमेश्वर के सामर्थ्य का दिखावा है। So that's why whenever you preach on the kingdom of God, you always see a mighty display of the power of God. और इसीलिए जब कभी आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो उसके राज्य का जो प्रचंड बातें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। That's why signs, wonders, and healings and miracles follow the preaching of the kingdom. इसीलिए चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयां और बड़े अद्भुत काम
परमेश्वर के राज्य के प्रचार के साथ में हो लेती हैं। Because the kingdom is in you, wherever you go, that kingdom follows you. And when you speak on the kingdom, the power of the kingdom is shown और when you preach. इसलिए परमेश्वर का राज्य तुम में है, तुम हमारे अंदर है, और जहां कहीं हम जाते हैं उसका राज्य हमारे साथ में चलता है, और जहां जहां हम जाते हैं उसके राज्य का प्रचार करते हैं, वो राज्य में काम होता है। Hallelujah. हालेलुया। Expect the power of God to manifest. आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य की सामर्थ प्रकट होगी। It's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है, It's the same power that raised Jesus from the dead. और यही सामर्थ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया था। The greatest display of the power of God is raising Jesus from the dead. परमेश्वर की सामर्थ का जो खुलेआम बखान है वो यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाने में दिखाई पड़ता है। So if it can raise Jesus from the dead, what are the problems of this world for that power? अगर यीशु मसीह को ही वो मृत्यु में से जिला सकता है तो इस संसार की समस्याएं क्या हैं? Hallelujah. हालेलुया। Will not shake the kingdom. सॉरी, Corona cannot shake the kingdom. कोरोना जो है उसके राज्य को हिला नहीं सकता। Let them say whatever it is, the third wave, second wave, fifth wave, it will not shake this kingdom. चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कहें, दूसरा हो, तीसरा हो या पांचवा हो, उसके राज्य को वो हिला नहीं सकता। Hebrews 12:28 says we have received a kingdom that cannot be shaken. इब्रानियों 12:10, No, 28. इब्रानियों 12:28 इस प्रकार से कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं कृतज्ञ हों। Hallelujah. Hallelujah. This is not a kingdom that can be shaken. ये वो राज्य नहीं है जो हिल जाएगा, हिलाया जाएगा। Hallelujah. This Hallelujah. no matter what the world throws at it, this kingdom will not be shaken because this is a kingdom of power. चाहे संसार कोई भी उलझन इसके ऊपर डाल दे, परंतु ये राज्य हिलने का नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। That's why we are studying about this. इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। Jesus taught about the kingdom for 40 days after his resurrection. यीशु मसीह ने उसके पुनरुत्थान होने के बाद में 40 दिनों तक उसके राज्य के विषय में प्रचार किया। Hallelujah. Hallelujah. What are you saying? आप क्या कह रहे हैं? Yes, 40 days 40 दिन after his resurrection. उसके पुनरुत्थान होने के उपरांत। You want to see it? Then go to Acts chapter 1. आप इसे देखना चाहते हैं तो आप प्रेरितों के काम एक अध्याय में जा सकते हैं। Let's read from verse 2. इसको दूसरे पद से पढ़ें। Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive, his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom. Which verse onwards, Pastor? 2 and 3. 2 और 3। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुतों से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। See, for 40 days after his resurrection, he taught them about the kingdom of God. देखिए, उसके पुनरुत्थान होने के बाद में 40 दिन तक उनको वो परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता रहा। See, if this was not important for Jesus, he would not have taken 40 days to teach these things. अगर ये प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना प्रमुख और इतना जरूरी बात ना होता तो वो 40 दिन तक उसके पुनरुत्थान होने के बाद में भी उनको ये बातों के बारे में ना बताता।
the last and the most important teachings of Jesus. और यीशु मसीह का आखिरी और बहुत प्रमुख शिक्षा। Hallelujah. हालेलुया। For crash course on the kingdom. और ये 40 दिन एक छोटा एक क्रैश कोर्स उसके राज्य के विषय में। Imagine how much he would have taught them. आप सोचे कितना उनको उसने सिखाया होगा। And we are trying to finish it in 1 hour. और हम इसे 1 घंटे के अंदर पूरा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। And in most churches, barely 1 week in a year, for 1 hour, they hear about the kingdom. और बहुत सारी कलीसियाओं में पूरे साल भर में 1 हफ्ते में या 1 ही घंटा उनको इसके राज्य के विषय में सिखाया जाता होगा। Many churches, they don't even listen to this. Nobody teaches these things. और बहुत सारी कलीसियाएं इसको सुनती भी नहीं है और बहुत सारे लोग इसको सिखाते भी नहीं है। Now you know why many churches are powerless churches. और There is no power shown there. Why people are dying, people are suffering. और इसीलिए बहुत सारी कलीसियाएं सामर्थ्यवान नहीं हैं, क्यों कर वहां पर इतने लोग दुख और निराशा में पड़े हैं। Because they don't teach on the kingdom. क्योंकि वो उसके राज्य के विषय में नहीं सिखाते। This is such an important topic that Jesus took 40 days. He preached about it while he was on the earth. And after his death and resurrection, he took another 40 days and taught the disciples on the और kingdom. ये इतना जरूरी संदेश, इतना जरूरी था जब यीशु मसीह जिंदा थे और शिष्यों को लगातार उसके राज्य के विषय में सिखाते रहे और उसके मरने और जी उठने के बाद में भी 40 दिन तक उनको लगातार उसके राज्य के विषय में सिखाते रहे। Now let's see what this is about. तो देखें ये सब कुछ क्या है। We read verse 3. Now let's read verse 4. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. हमने 3 पद पढ़ा था और 4 पद से आगे अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। So you look at this. He's teaching about the kingdom of God, and then what did he teach them about? The Holy Spirit. और देखिए उन्हें वो उसके राज्य के विषय में सिखा रहा था और उसके उपरांत क्या सिखा रहा है? पवित्र आत्मा के विषय में। He taught them and prepared them so much that they were ready for the baptism of the Holy Spirit on the day of Pentecost. और वो लोग सिखाए गए थे और वो तैयार हो गए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक पाए, बपतिस्मा पाए उस पेंतिकोस्त के दिन में। He said in verse 8, he said, you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. और 8वें पद में उसने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। He did not change the topic. उसने अपने विचार को वहां पर ना बदला। He is still on the topic of the kingdom. और वो अभी भी उसके राज्य के विषय में ही विचार को ही लेकर उनसे बात कर रहा है। And he taught them about the Holy Spirit. और उसने उन्हें पवित्र आत्मा के विषय में सिखाया। He was imparting kingdom mentality into his disciples. वो अपने शिष्यों के अंदर परमेश्वर की मानसिकता, परमेश्वर के राज्य की मानसिकता को डाल रहा था। And he gave them the key to operating in the kingdom. और उसके राज्य में चलने की कुंजी को उनको दे दिया। That is the Holy Spirit. और वो क्या है? पवित्र आत्मा। Everything about the kingdom is in the Holy Spirit. जो कुछ परमेश्वर के राज्य में है वो सब कुछ पवित्र आत्मा में है।
He said, that's why Paul said in Romans chapter 14, verse 17, he said, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और इसीलिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना और ये सब कुछ नहीं है, परंतु उसके सामर्थ्य में है. No, it says righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा में न्याय. विच वर्स इज दैट पास्टर? रोमन्स 8, Romans 14:17. रोमियो 14 और उसका 17. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से है. Look at that. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से है. All three of them in the Holy Spirit. ये तीनों पवित्र आत्मा के अंदर. Righteousness in the Holy Spirit, peace in the Holy Spirit, and joy in the Holy Spirit. और धर्म पवित्र आत्मा में, मेल मिलाप पवित्र आत्मा में और आनंद पवित्र आत्मा में. Everything in the Holy Spirit. सब कुछ पवित्र आत्मा में. That is the kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य है. Hallelujah. हालेलुया. I'm understanding this. मैं सोचता हूं आप इस बात को समझ रहे हैं. Jesus preached on the kingdom. यीशु ने उसके राज्य का प्रचार किया. After his death, burial, and resurrection, he came back and he taught on the kingdom. उसके मरने और उसके गाड़े जाने और जीवित होने के उपरांत भी उसने उसके राज्य का प्रचार किया. All those who believe in him, they are in the kingdom. जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसके राज्य में है. And the kingdom is in them. और राज्य उनके अंदर है. And the kingdom is there with power. और उसका राज्य सामर्थ के साथ में है. And that power is of the Holy Spirit. और वो सामर्थ पवित्र आत्मा में है. I believe you're understanding this. Are you getting the importance of the kingdom? और मैं सोचता हूं आप समझ रहे हैं. अब आप समझ रहे हैं कितना प्रमुख है उसके राज्य के विषय में. So what are you supposed to do? तो हमें क्या करना है? In Luke chapter 4 verse 43, we read before, Jesus said, I must preach the kingdom because for this purpose I have been sent. और लूका 4 में हमें इसको पहले भी पढ़ा था कि यीशु कहते हैं मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं उसके राज्य का प्रचार करूं. I have to preach the kingdom. मुझे उसके राज्य का प्रचार करना होगा. This is the purpose for which I have been sent. यही उद्देश्य है जिसके विषय में मुझे भेजा गया है. So if that was Jesus's purpose, अगर ये यीशु मसीह का उद्देश्य है आने का, what about you and me? तो मेरा और आपका क्या उद्देश्य है? Think about it. इसके बारे में आप सोचें. 1 John 4:17. पहला 1 यूहन्ना 4:17. Read. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. पहला यूहन्ना 4:17 में इस प्रकार से लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वे है वैसे ही संसार में हम भी हैं. Look at that. As he is, so are we in this world right now, not in heaven, in this world right now, exactly like Jesus. जैसे वह है वैसे ही संसार में हम हैं. इसका अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग में आने वाले समय में स्वर्ग में होगा, परंतु इसी पृथ्वी पर इसी समय, right now you are exactly like Jesus. इस समय पृथ्वी पर आप यीशु के समान हैं. Think about it. You are exactly like Jesus on the earth. सोचे इसके बारे में. आप यीशु के समान इस संसार में अभी हैं. And if Jesus said, I must preach the kingdom of God, what about you and me? अगर यीशु ने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि उसके राज्य का प्रचार करूं, मैं और आप कौन है, क्या है हमारे लिए? Say, but I am not a preacher. आप कहेंगे मैं तो कोई प्रचारक नहीं हूं.
say, I'm a housewife, or I work in an office. और आप कहेंगी मैं एक गृहिणी हूँ और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। Jesus said, go and make disciples of all nations. यीशु ने कहा जाकर सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। Are you a disciple? क्या आप उसके शिष्य हैं? Are you exactly like him right now? क्या आप उसके समान इस समय हैं? Then it is your responsibility to preach on the kingdom of God. तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसके राज्य का प्रचार करें। He was speaking to all the disciples, वो सब चेलों को इसके विषय में बता रहा था। not just one or two people. If he spoke to the disciples, then he is speaking to the disciples today. उसने एक दो चेलों को नहीं, उन चेलों को जो उस समय उसके साथ में थे और उन चेलों को जो आज अभी इस संसार में उनसे वो ये बात कहता है। That's why in Matthew 10:7 he said, as you go, preach the kingdom of God and his righteousness. और इसलिए मत्ती 10:7 में लिखा है, तुम जब जाते हो चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Wherever you go, it is your responsibility to preach the kingdom of God. जब कभी आप जाओ तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसके राज्य का प्रचार करें। What did he tell the people in Matthew 6:33? उसने मत्ती 6:33 में क्या कहा लोगों से? He said, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things that the people run after will be added to you. उसने कहा इस प्रकार से, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What did he say, seek first? उसने क्या कहा पहले खोजने को? The kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को। But what are you seeking first? आप किसकी खोज कर रहे हैं पहले? The girl to marry? पहला आप कौन सी महिला जिससे आपको विवाह करना है? A job? नौकरी? I have to build a house? मुझे एक घर बनाना है। I have to teach my children? मुझे बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। I have to put money in their account? मुझे उनके खातों में पैसा जमा करना है। I should have more money for myself? मुझे मेरे लिए बहुत सारा पैसा होना है। I have to buy a car? मुझे एक कार खरीदनी है। That's what most people are seeking after. यही बहुत सारी बातें हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत खोज रहे हैं। I'm talking about Christians, not other people, talking about Christians. मैं और लोगों के विषय में नहीं कह रहा, परंतु उन मसीहों के विषय में ही कह रहा हूं। You see this everywhere. ये आप हर जगह देखते हैं। They are not seeking the kingdom first, they are seeking everything else first. वो पहले उसके राज्य को नहीं खोज रहे हैं, परंतु बाकी सब कुछ पहले खोज रहे हैं। That's why you don't see power in your life. इसलिए आप अपने जीवन में सामर्थ को नहीं देख पाते हैं। If you want to see the power of God manifest in your life, get out there, study about the kingdom of God, preach the kingdom of God, and you will see God adding everything into your life. और अगर आप पर सामर्थी रूप में चलना चाहते हैं तो आप कदम आगे निकालें, उसके वचन में परमेश्वर के राज्य का अध्ययन करें और उसके वचन का प्रचार कर, उसके राज्य का प्रचार करें, तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I came to Bangalore with nothing. I ran away from home because my family persecuted me for being a Christian. I ran away from home, came to Bangalore, but thank God I learned about this. We were doing it, and today I don't lack anything. और मैं I speak on the kingdom of God, and I have everything. And I've seen miracles, hundreds and thousands of miracles. I've seen lives transformed. और मैं जब बेंगलुरु आया था तो मैं खाली हाथ, मैं तो घर से भाग कर आया था क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे प्रताड़ना किया क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हुआ। और जब मैं यहाँ पर आया, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि मैं उसके राज्य के विषय में जान पाया। और उसके उपरांत जब मैंने परमेश्वर के राज्य को समझा, उसकी सामर्थ को समझा, मैं बहुत ही आशीषवान हूँ। मैंने बहुत सारे हजारों चमत्कारों को देखा है।
I don't lack anything मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं है, because I seek first the kingdom of God. क्योंकि मैं पहले उसके राज्य को खोजता हूँ। I don't have any secret agenda. मेरे पास में कोई भी गुप्त प्रणालिका नहीं है। My only agenda is the kingdom of God. मेरा सबसे पहला काम उसका राज्य है। I want to see people built up in the kingdom of God. I want to see his kingdom being preached everywhere. और मैं चाहता हूं कि लोग उसके राज्य में बन जाएं, तैयार हो जाएं और उसके राज्य का हर तरफ प्रचार हो। I saw this pattern in the Bible. मैंने इसका तरीका बाइबल के अंदर पाया। I saw Jesus preaching the kingdom. मैंने यीशु को प्रचार करते हुए देखा उसके राज्य के। And then when I looked at the life of the apostles, I saw all the apostles following the same pattern. और जब मैंने प्रेरितों के जीवन को देखा तो मैंने पाया कि वे सब इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। And when you study the book of Acts, you see the same pattern being followed by the apostles. और जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखते हैं तो प्रेरित भी इसी राज्य के प्रणालिका को अपने जीवन में लागू करते हैं। Our time is running out, but I have so many things to say, but I hope you understand this. मेरा समय तो बीता जा रहा है और मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं। I'll give you the reference. Go and read it for yourself. मैं वचनों का रेफरेंस आपको दे दूंगा, आप जाकर पढ़ लें। Acts chapter 8 verse 5 to 13. प्रेरितों के काम 8:13 से 15। You see Philip the evangelist, he preached the kingdom of God and all the miracles and signs and wonders happened. आपने देखा कि फिलिपुस ने राज्य का प्रचार किया और बहुत सारे लोग हो लिए और चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयां हुई। Acts chapter 19 verse 8 8 onwards you will see Paul preaching the kingdom of God for 3 months and all kinds of miracles happen. और आप प्रेरितों के काम 18 में पाएंगे कि पौलुस परमेश्वर के राज्य का 3 महीने तक प्रचार करता है और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होते हैं। In Acts chapter 28 again you see the apostle Paul preaching the kingdom of heaven. और प्रेरितों के काम 28 अध्याय में आप फिर से पाते हैं पौलुस को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए। Everything starts with preaching the kingdom of heaven. सब कुछ परमेश्वर के राज्य का प्रचार से ही आरंभ होता है। God started by putting you in the kingdom of heaven. यीशु ने, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य में रखने से प्रारंभ किया। Ephesians 1 verse 3 says you are blessed with every blessing in heavenly places. That's the kingdom of heaven. इफिसियों की पहली पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्ग के सारे आशीषों के उत्तराधिकारी को परमेश्वर ने हमें बनाया है। He gave you every blessing that heaven has. और उसने जो स्वर्ग में सारी आशीषें जो हैं वो हमें दी हैं। It does not say he is going to bless you. It says he has already blessed you with every blessing that heaven has. और उसमें ऐसा नहीं लिखा कि वो आपको आशीषें देने जा रहा है, परंतु ये लिखा है जो स्वर्ग में आशीषें हैं वो तुम्हें दे दी गई हैं। Why? क्यों? So you can be a blessing to others ताकि आप दूसरों के लिए आशीषवान हो सकें by displaying the power of the kingdom. और उसके राज्य के प्रभाव को दिखाते हुए Bring them into the kingdom. उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हुए। How do you enter the kingdom? कैसे उसके राज्य में आप प्रवेश करते हैं? In John chapter 3 verse 3 Jesus said unless one is born again he cannot see the kingdom of heaven. और कैसे आप उसके राज्य में आते हैं? यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अन्यथा तुम विश्वास करो तुम उसके राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। Unless you are born again, unless one is born again, जब तक कि वो नया जन्म ना प्राप्त करे उसके राज्य में प्रवेश ना करने पाए। That is the only way into the kingdom of God, by being born again. एक ही तरीका है जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं उसके राज्य में आप प्रवेश होने पाएंगे।
And how do you do it? Romans 10 verse 9 says, you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. और ये कैसे हो सकता है? आप मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तुम उद्धार पाओगे। That's how you get saved. ये है आप कैसे बच जाते हैं। And it's your responsibility to preach the kingdom. और ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसके राज्य का प्रचार करें। Before I close, I want you to open Romans chapter 2 verse 4. इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं चाहता हूं कि आप रोमियो 2 अध्याय निकालें। Verse 4, it says, or despise thou the riches of his goodness, forbearance, and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. और यहाँ पर रोमियो 2:4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? It says the goodness of God will lead men to repentance. यहाँ लिखा है परमेश्वर का कृपा मनुष्य को मन फिराव के लिए लेकर आती है। So when you preach on the kingdom, you preach the goodness of God. तो जब आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर की कृपा का प्रचार करते हैं। The goodness that saved you. वो कृपा, वो अच्छाई जिसने आपको बचा लिया, that delivered you from the bondages that you were stuck in. और वो जिनमें आप फंसे हुए थे और वो बंधन जिसमें आप जकड़े हुए थे, जिससे उसने आपको आजाद किया। Let me tell you my story as I close. मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा इससे पहले कि मैं खत्म करूं। By the time I was 19 years old, I have done every possible thing that a man can imagine and do, every evil thing. और मैं अब 19 साल का ही था और मनुष्य जो सोच भी नहीं सकता अपने मन में, उन सारे कामों को मैंने उस उम्र में कर दिया था। I was a drug dealer. I was selling drugs. I was getting people addicted to drugs. I've done so many bad things that I don't even want to speak about it. और मैं नशाखोरी या नशे को दूसरों तक पहुंचाता था और बहुत सारे लोगों को नशे के नज़दीक लाया और ऐसे काम किए जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकता, जिनको बोल भी नहीं सकता। I was into occult, black magic. और मैं काला जादू के अंदर था। And my daily routine was either I beat somebody or somebody beat me up. I was a gunda. और मेरा दिनचर्या इस प्रकार से था, या मैं किसी को मारता या कोई मुझे मारता। मैं एक गुंडे के रूप जैसा था। That was where I come from. ऐसी परिस्थिति से मैं आया हूं। And I was according to me, I was the main sinner. If anyone will go to hell, I will go to hell. और मैं कहूं, अगर ऐसा पापी मैं था, ऐसा पापी अगर कोई नरक में जाएगा तो वो मैं ही होऊंगा। From there, I heard the gospel of the kingdom. और उस जगह से मैंने यीशु के सुसमाचार को सुन लिया। It's been 23 years. ये 23 साल बीत चुके हैं। And I'm enjoying the benefits of the kingdom. और मैं परमेश्वर के राज्य की जितनी भली चीजें हैं उसका आनंद ले रहा हूं। And I want you to enjoy the benefits of the kingdom. और मैं चाहता हूं कि आप भी उसके राज्य की जो भली आशीषें हैं उसका आनंद लें। Say this with me. मेरे साथ में इस बात को कहें। I am in the kingdom of heaven. मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। The kingdom is in me. और उसका राज्य मुझ में है। In this kingdom there is no sickness and poverty or curse. और इस राज्य में कोई बीमारी, कोई गरीबी और कोई प्रकार का लोप नहीं है। श्राप नहीं है। श्राप No नहीं। curse. कोई भी श्राप नहीं है।
I am delivered from sickness, lack, poverty, and curse. और मैं हर प्रकार की बीमारी से और हर प्रकार के श्राप से मैं छुड़ा दिया गया हूं। I have the power of the kingdom backing me up. और मुझ में परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य उतर आया है। Wherever I go, the kingdom follows. मैं जहां कहीं जाऊंगा उसका राज्य की सामर्थ मुझे मेरे पीछे हो लेगी। Wherever I step, the kingdom steps. जहां कहीं मैं पैर को रखूंगा वहां पर उसका राज्य आ जाएगा। And the power of the kingdom of heaven will show up there. और उस स्थान पर परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी। Whatever I touch, the kingdom of heaven touches. जो कुछ मैं छूंगा परमेश्वर के राज्य में वो छुआ जाएगा। And whatever I touch will be affected by the power of the kingdom. और जो कुछ मैं छू लूंगा परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य में वो छू लिया जाएगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। Thank you so much. I believe you understood something. I can go on for hours teaching on this, but I believe you understood something today. I just gave you, I know it took 2 hours, but what I gave you today, if you apply it in your life, you will see the power of God. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ 2 घंटे हम लोग इसके विषय में सुने, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने तो सिर्फ प्रारंभ की बातें आपको बताई हैं, और मैं सोचता हूँ अगर केवल आप इनको अपने जीवन में अनुसरण में लगा दें तो परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Peter, thank you for this opportunity. Thank you, Brother Anish. I'm really grateful that I could speak and affect the lives of people who are listening. मैं भाई पीटर और भाई अनीश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी शिक्षा के द्वारा मैं सोचता हूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन प्रभावित होंगे। Thank you so much. I'm grateful. धन्यवाद। पास्टर, वी वांट टू थैंक यू सो मच, दिस इज ऑसम। भाई पासबान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये रोमांचक है और ये हमें उस प्रेरणा की और उस उत्तेजना की ओर लेकर जाता है जो परमेश्वर के राज्य में है। वी रियली वांट टू थैंक यू विथ द फोल्डेड हैंड्स, मैन ऑफ गॉड। थैंक यू so much for coming. This should not be the first and the last. We want you to come again and again and minister and reveal and open as God has been giving to you. और हम कृतज्ञ हैं प्रभु यीशु मसीह में आपके, और हम चाहते हैं ये पहला और अंत ना हो, परंतु आप लगातार हमारे बीच में आए और परमेश्वर के जो वचन की जो रहस्यमय बातें हैं उनको आप हमारे बीच में बताते रहें। प्रभु यीशु मसीह में हम आपका अति धन्यवाद करते हैं। वी वांट टू थैंक यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू सो मच।